everyone, स्वागत करुछि आज रे क्लास को. So I hope you are all fine and studying well. So in this class we are going to discuss about competitive market, the characteristics of competitive market and profit maximization in the short run and long run, and the supply curve of perfect competition market. So there are many things to learn, many things to understand. So if class will be interesting for you, then please like, share and subscribe to this channel. Okay, so let's begin the class. So what is competitive market? Competitive market is the market in which there are large number of sellers compete with themselves to sell a homogeneous good. The perfect competition market jahaku kuha hue, that is also known as the competitive market. So competitive रो जना होची competition रही माने बहुत प्रतियोगी अछंती से बाजार रे. तो एते प्रतियोगी अछंती ता सहित they are selling a goods that is homogeneous, माने से सब समान प्रकार समजातीय द्रव्य से माने बिक्री करथांती से बाजार रे. That is called perfect competition market. So the competitive market or perfect competition market is the market in which there are large number of sellers compete with themselves to sell a homogeneous good. माने एमिति प्रकार गोटे द्रव्य से माने बिक्री करथांती विक्रेता माने कि सही सबु द्रव्य गुड़िक सबु विक्रेता मानकर द्रव्य रो गुण समान होइथाय, समजातीय होइथाय सबु द्रव्य सबु विक्रेता मानकर. So there are some characteristics. What are the characteristics of this competitive market? So in this market there are large number of buyers and sellers. विक्रेता भी बहुत अछंती, विक्रेता भी बहुत अछंती, and there is the good is this is homogeneous product. Sorry, this is price. This is not price. This is product. Homogeneous product. So जो द्रव्य सब बिक्री होची, the good which is sold in this market are of equal quality. Okay, and equal also there in every sphere all the goods are equal. Okay, विक्रेता मान जो भी सब द्रव्य बिक्री करछंती सब विक्रेता मानकर द्रव्यर गुण समान होइथाय. 3 नंबर होची there is free entry and exit. Free entry and exit. So in this market the entry is completely free and exit is also completely free. जदि जने विक्रेता चाहिबो से उत्पादन करि पारिबो, किंबा जदि जने विक्रेता तार लाभ होने से जदि बंद करिबा पे चाहूची उत्पादन, ताहेले बिना किछि बाधारे बिना किछि प्रतिबंध करे से उत्पादन बंद करि पारिबो. Okay, so there is free entry and exit. Then fourth one is free mobility of factors of production. Free mobility of factors माने जो factors of production गुड़ा अच्छी land, labor, capital and organization, जिते भी सब factors अच्छी गोटे production रो सब labor हला गोटे कंपनी रे काम करूची से चाहिए बिना किसी बाधारे आ गोटे कंपनी रे join करि पारिबो without any restrictions. जदि गोटे कंपनी रे वेज कम मिलुची ताको जदि मजूरी कम मिलुची से आ गोटे कंपनी रे जाई जॉइन करि पारिबो. तो या फल रे कोन हबो सब कंपनी रे सब जते भी सब फार्म गुडा अछि प्रतिष्ठान गुडा करे वेज ता समान रहइबो. ओके, मजूरी ता समान रहइबो बिकॉज़ देयर इज फ्री मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स. सो द प्राइस ऑफ फैक्टर्स इन एवरी फार्म विल बी इक्वल. वेस्टा मजूरीटा सबुठी समान रहइबो कारण फ्री मोबिलिटी अछि. जदि को प्रतिष्ठान जदि कम मजूरी दउछि तो सेही जो काम करछन्ती श्रमिक माने से आ गोटे प्रतिष्ठान को जाय जॉइन करिवे. ओके, तो सेति पई कोन हबो समस्ते सब प्रतिष्ठान समान वेज प्रदान करिवे. Then last one is perfect knowledge about market. So in this market all the sellers and buyers have complete knowledge about the market. एही बाजार रे सबु विक्रेता और क्रेता को पाखरे समस्त प्रकार सूचना अछि द्रव्य संबंध रे, द्रव्यर गुण संबंध रे, द्रव्यर दर संबंध रे तांकर पाखरे समस्त प्रकार सूचना रहिछि, तांकर पाखरे समस्त ज्ञान रहिछि. Okay, so these are the features of
this competitive market, that is perfect competition market. ओके तो जेहेतु होमोजेनियस प्रोडक्ट अच्छी ए बाजार रे देयर इज इक्वल प्राइस आल्सो, देयर इज इक्वल प्राइस माने समस्त विक्रेता माने कारण सब गुड्स क्वालिटी समान तो ऑटोमेटिक प्राइस भी समान ही हम कारण जदि जने अधिक दउछि तो लोक माने ता पाखो किनिया पई ता पाखो जीवेनी किनिबा पई। ओके तो सेति पई सबु फार्म रो प्राइस ता समान, देयर इज इक्वल प्राइस। आउ कौन अच्छी इन दिस मार्केट ए फार्म इज ए प्राइस टेकर, फार्म इज ए प्राइस टेकर कारण बहुत सारा विक्रेता अच्छा तेणु जड़े विक्रेता एटी दर निर्धारण करि पारे नाही, बाजार ही दर निर्धारण करे। सो इन कॉम्पिटिटिव मार्केट और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट द सेलर इज ओनली प्राइस टेकर, ही कैन नॉट डिटरमाइन प्राइस, ही ओनली एक्सेप्ट द प्राइस। ओके तार इम्पोर्टान्सटा बहुत कम कारण जड़े जगह उत्पादन कले कि न कले किसी बाजार को किसी प्रभावित करि परिबो नाही, बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन दिस मार्केट। ओके तो तापर हम गोटे क्वेश्चन आसी पारे एमती बाजार अच्छी कि इज देयर एनी मार्केट लाइक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट? एक्चुअली देयर इज नो एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, कौन सी उदाहरण नहीं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रो। आम या गोटे आइडियल स्ट्रक्चर मार्केट कहि परिबा, एटा होची गोटे बाजार गोटे आदर्श संरचना बा आदर्श संगठन। ओके जेमती आम राम राज्य विचार करथाउ, राम राज्य तो कोठी भी नहीं किंतु सेटा गोटे आदर्श राज्य हिसाब रे हम नै थाउ, सही पली मार्केट स्ट्रक्चर दिस इज द आइडियल स्ट्रक्चर। तार अर्थ होची मार्केट जदी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट भलिया हबो ताहले समस्ते लोक माने समस्ते खुशी रे रही पारिबे, द्रव्यर ठीक क्वालिटी पाइबे, बहुत मिनिमम प्राइस रे से माने पाई पारिबे। ओके सो दिस इज द आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, सो वी आर लर्निंग अबाउट दिस मार्केट। ओके देयर इज नो एग्जांपल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। नेक्स्ट वी कैन सी द एवरेज रेवेन्यू। तो मैं कहली प्राइस इज इक्वल एंड ए फार्म कैन नॉट डिसाइड द प्राइस, डिसाइड करिबो किए मार्केट डिसाइड करे। ओके द मार्केट विल डिसाइड द प्राइस, सो ऑल फॉर ऑल फार्म्स द प्राइस इज इक्वल कारण मार्केट जेहेतु डिसाइड करछि गोटे ही प्राइस रहे, सबु फार्म सबु उत्पादक सही दर रे ही ताकू बिक्री करिथांती। ओके सो देयर इज इक्वल प्राइस। तो हमें एठी price जोटा that is also average revenue. So here demand curve is parallel to x axis and it is equal to average revenue is equal to MR and this is equal to also price. Okay price is equal to AR is equal to MR in this market. तो कहीं एमती हो AR टा MR सहित कहीं इक्वल हो आम देखा मार्जिनल रेवेन्यू सहित कहीं इक्वल हो। फॉर एग्जांपल प्राइस हो 10 अच्छी तो गोटे फार्म जदि गोटे जदि बिक्री कला गोटे यूनिट जदि बिक्री कर तार रेवेन्यू हम के 10 into 1, दुईटी जदि बिक्री कर तार रेवेन्यू है 20, तीनोटी जदि बिक्री कले 30, चारोटी बिक्री 40, सेमती पांचटी बिक्री कले 50। तो ये गोटे एक्स्ट्रा सेल पाई टोटल रेवेन्यू रे केते चेंज होची 10 थिला 20 हैला 20 रु 30 हैला तो कौन हो 10 ही चेंज होची। ओके सो द चेंज इन माने गोटे जदि एक्स्ट्रा द्रव्य से बिक्री करूची ताहले टोटल रेवेन्यू रे केते परिवर्तन होची दरर मूल्य जेते सेते परिवर्तन होची। ओके सेति पई एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू समान होय थाए, प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। प्राइस तो सब बेले एवरेज रेवेन्यू सहित सामान होता है किंतु यही केस रे कौन हुए एवरेज रेवेन्यूटा मार्जिनल रेवेन्यू सहित सामान हुए। प्राइस जिते होची टोटल रेवेन्यू रे चेंज भी सेते होची काई केमती होची बिकॉज प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस डज नॉट चेंज फॉर ए फार्म। गोटे फार्म पाई गोटे प्रतिष्ठान पाई दर स्थिर रही थाए सेति पाई एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। आ जदि टोटल रेवेन्यू जदि हम करबा then total revenue curve will be upward sloping,
upward sloping, and it will be a straight line. Okay, and then 45 degree line will be the total revenue curve because price is constant. That is the main reason behind this curve. Okay, so in perfect competition market, price is equal to average revenue is equal to marginal revenue. नेक्स्ट आम देखा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. गोटे फार्म केतेबेले तार प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करिवो. सो व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट. माने जड़े जिते टंका पाइला ता सहित जिते खर्च है. जदि जड़े 1000 टंका बिकिकी पाइला और जब 500 टंका से खर्च करिछि ताले 500 टंका है प्रॉफिट. ओके, सो ये जगह जदि हमें देखा टोटल कॉस्ट टाइम दी फास्ट इंक्रीज है, फास्ट धीरे धीरे बढ़ला तापर बेसी रेट रे बढ़ला. दिस इज टोटल कॉस्ट एंड द टोटल रेवेन्यू कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू कर्व इज स्ट्रेट लाइन. ता आगुर आम पढ़ी. तो जो थी टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट भितर डिफरेंस अधिक से जगह प्रॉफिट अधिक हम. जदि बेसी टंका आम पाइले खर्च जदि कम है से प्रॉफिट अधिक हम. ओके, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन the total revenue and total cost is the highest, at that point profit is maximized. Okay, जो पॉइंट रे जो आउटपुट रे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट भितर डिफरेंस अधिका होची सेठी कोन होची प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज्ड. ओके, तो ये जगह जो एक्सई जिते बेले से आउटपुट प्रोडक्शन करूची से जगह टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट भितर डिफरेंस दैट इज प्रॉफिट इज द हाईएस्ट. अच्छा, से पॉइंट रे कौन होची टोटल रेवेन्यू तो स्लोपटा सेम रहा, गोटे कांस्टेंट स्लोप रोची. टोटल कॉस्ट स्लोप से जगह सामान होची या सहित सामान होची. टोटल कॉस्ट स्लोप टोटल रेवेन्यू स्लोप सहित ये जगह सामान होची. दुटा पैरेलल होची. जदि गोटे आम टांजेंट गोटे ड्रॉ कर दवा ये जगह देन कौन हो जाए सेटा सामान हम. व्हिच मीन्स द स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू slope of total cost. Okay, the slope of total revenue will be equal to slope of total cost. माने ये जगह दुटा स्लोप सामान हो. माने जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड हम टोटल रेवेन्यू रा स्लोप इक्वल हम क्या सहित टोटल कॉस्ट रा स्लोप सहित. द टोटल कॉस्ट रा स्लोप होची मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू रा स्लोप होची मार्जिनल रेवेन्यू. सो the marginal revenue will be equal to marginal cost जो जगह प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड होची. एटा ये डायग्राम रे भी देखि पारिबा हमें कि एटे प्रॉफिट कर्व होची. एटा प्रॉफिटटा कोन होची फास्ट 0 थिला धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी गले एटा मैक्सिमम हेची. जोठी मैक्सिमम हेची से जगह रे द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज द हाईएस्ट. धीरे धीरे कमी कर गला. ए जगह रे टोटल कॉस्ट सहित इक्वल हे गला से प्रॉफिट 0 हो गला. जिते टंका से पाउची और जिते टंका से खर्च करिछि दुईटा जदि समान हो गले प्रॉफिट विल बी 0. ओके, सो एटा हमें डायग्राम माध्यम रे देखिले कि जोटी डिफरेंसटा अधिका होची टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट भितर सेते बेले प्रॉफिटटा मैक्सिमाइज होची फार्म रो. नेक्स्ट हमें मैथमेटिकली देखिबा ए कंडीशनटा केमती हमें डिराइव करूची. So next is mathematical derivation of this profit condition, the first order condition and second order condition. So profit is nothing but the difference between total revenue and total cost. तो जदि गोटे फंक्शन को जदि मैक्सिमाइज करबा पई हुए हम आगरो देखिथिले कि प्रॉफिट टा एमती हितला प्रॉफिट कर्व. तो एई जगह रे प्रॉफिट टा मैक्सिमम हितला तो से जगह जो क्यू रो वैल्यू जोटा है से मैक्सिमाइज होची. तो गोटे फंक्शन को मैक्सिमाइज करबा पई कौन करबा हुए आमको फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिवटा 0 होतो और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिवटा तार नेगेटिव होतो सेते बेले ही फंक्शन टी मैक्सिमाइज हुए. जोटा मैथमेटिकल आम पढ़ी मैक्सिमा मिनिमा रे मैक्सिमा केते बेले हुए फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिवटा 0 होतो और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिवटा नेगेटिव होतो. यही पॉइंट रे फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिवटा 0 हो जाए कारण एक्स सहित पैरेलल है और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिवटा नेगेटिव हो जाए. यहाँ हूँ प्रॉफिट फंक्शन और प्रॉफिट कर्व. तो कौन करवा आम फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 करवा
सो ए प्रॉफिट को आम कौन कले डेरिवेटिव नहीं गले विथ रेस्पेक्ट टू क्यू। तो टोटाल रेवेन्यू डेरिवेटिव माइनस टोटाल कॉस्ट और डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आम 0 नौ, तो प्रॉफिट फंक्शन को आम मैक्सिमाइज करने चाहूँचे। सो टोटाल रेवेन्यू डेरिवेटिव ऑफ टोटाल रेवेन्यू विथ रेस्पेक्ट टू क्यू इज मार्जिनल रेवेन्यू एंड डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट with respect to Q is marginal cost. Okay, so MR minus MC is equal to 0, MR is equal to MC. This is the first order condition of profit. Profit केतेबेले maximize होबो when marginal revenue is equal to marginal cost. At that point profit will be maximized. तो जदि हम ए डायग्राम को देखिबा, ए डायग्राम रे कोन होची ए पॉइंट रे आ ए डैश पॉइंट रे बोथ पॉइंट रे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होची। तो क्यूटा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट होबो ना क्यू डैश होबो, सेति पे हमें सेकंड ऑर्डर कंडीशन को देखिबा। सेकंड ऑर्डर कंडीशन कोन कहूची, द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन मस्ट बी लेस देन 0। लेस देन 0 हेले कोन होबो, मार्जिनल रेवेन्यू रो स्लोप मस्ट बी लेस देन मार्जिनल कॉस्ट। ओके, एटा जदि हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जदि नहीं जावा पुणी मार्जिनल रेवेन्यू रो डेरिवेटिव एपटे मार्जिनल कॉस्ट रो डेरिवेटिव शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ इंटरचेंज करके जदि हमें लिखा, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, दैट इज द स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी लेस देन स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ओके, ये जिनस आम यहाँ पाइपर। तार अर्थ कौन, मार्जिनल रेवेन्यू रो स्लोपटा मार्जिनल कॉस्ट रो स्लोप ठारू कम होउथबो। अच्छा, जदि आम ए पॉइंट रे देखिबा, ए पॉइंट रे मार्जिनल कॉस्ट रो स्लोप आम केमती पाइबा, गोटे टांजेंट गोटे एमती ड्रॉ कर देले। तो टांजेंटा कौन हो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, माने नेगेटिव, तार स्लोपटा है नेगेटिव। आउ मार्जिनल रेवेन्यू रो स्लोप कौन हम, मार्जिनल रेवेन्यू एक्स एक्सिस सहित समांतर अच्छी। सो मार्जिनल रेवेन्यू रो स्लोप है 0। तो मार्जिनल रेवेन्यू रो है स्लोप 0 और मार्जिनल कॉस्ट है नेगेटिव ए पॉइंट रे। तो नेगेटिव बड़ ना 0 बड़, 0 ही बड़। तो ये जगह रे मार्जिनल रेवेन्यू रो स्लोप अधिका हो गला मार्जिनल कॉस्ट ठारू ए पॉइंट रे। सो दिस इज नॉट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट। एबे ए डैश को जदि देखिबा, एठी कोन होईची, ए डैश पॉइंट रे मार्जिनल कॉस्ट जदि हम टांजेंट गोटे ड्रॉ करबा एमती पॉजिटिव स्लोप है। तो ये जदि पुणी कंपेयर करबा, मार्जिनल रेवेन्यू तो स्लोप सेया ही अच्छी 0 अच्छी, मार्जिनल कॉस्ट स्लोप है ये पॉजिटिव। सो पॉजिटिव नंबर बड़ ना 0 बड़, पॉजिटिव ही बड़। सो हियर द स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। सो Q dash output is the profit maximizing output, because here both the conditions are fulfilled. So what are those conditions? Marginal revenue is equal to marginal cost and the slope of marginal cost is more than slope of marginal revenue. Next we'll see profit maximization in the short run. So गोटे फार्म तार प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो पारे इन द शॉर्ट रन, गोटे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे लॉस भी हो पारे। माने एमती गोटे आउटपुट से प्रोडक्शन करिवो जोटा तार प्रॉफिट मैक्सिमाइज खोजी से लॉस भी होची, लॉस हो पारे किंबा नॉर्मल प्रॉफिट भी हो पारे। तो तीनोटी कंडीशन हो पारे इन द शॉर्ट रन। ए फार्म मे अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट, ओके, दैट इज आल्सो नोन एज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, or a farm may earn or incur loss, or a farm may have no profit or normal profit. ये तीनोटी कंडीशन हो पारिबो फार्म रो। तो जदि फर्स्ट केस जदि देखिबा, जदि एवरेज रेवेन्यू कर्व जदि ऊपरे जदि रहिला कॉस्ट रो जस्ट ऊपरे रहिला, तार अर्थ एठी प्राइस इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। ओके, तो एठी मार्जिनल कॉस्ट होची एटा आउ एवरेज कॉस्ट एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू है यहाँ। तो ई पॉइंट रे इंटरसेक्ट कले सही पॉइंट जब तौक आम जब नहीं जावा, ओ एम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट आउ पी होची हमर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ प्राइस। ताहले एठी ओपी इंटू ओ एम जदि करदेबा, प्राइस इंटू क्वांटिटी जदि करबा, ओ पी ई एम है हमर टोटल रेवेन्यू। ओ पी
EM ओके गोटे आयतचित्रर क्षेत्रफलर सूत्र कौन दैर्घ्य गुणन प्रस्थ तो ये दैर्घ्य हूँ OM आउ OP हूँ आमर प्रस्थ दुईटा गुणन करदे OPEM है टोटल रेवेन्यू प्राइस इंटू क्वांटिटी सेमती कॉस्ट हमें बाहर करिपरिबा एई पॉइंट जो F पॉइंट रे टच कला FM हूँ एवरेज कॉस्ट कारण से पॉइंट रे ही एवरेज कॉस्ट को टच करिछि सो FM इज द एवरेज कॉस्ट या को यदि क्वांटिटी सहित यदि गुणन करदेबा FM इंटू OM जदि करबा ताहले OHFM इज द टोटल कॉस्ट है गोटे प्रोडक्ट रे FM खर्च होइछि आ OM आम प्रोडक्ट प्रोडक्शन करूचे आउटपुट प्रोडक्शन करूचे सो OHFM है टोटल कॉस्ट ओके सो हियर टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल कॉस्ट सो देयर इज प्रॉफिट and also here average revenue that is price is more than average cost गोटे प्रोडक्ट बनवा जिते टंका पाउची ता अधिक होइची तार खर्च ठारू तार माने उत्पादन करबा पय जो खर्च होची ता तो अधिक टंका से पाउची ताले पर यूनिट से प्रॉफिट पाउची PH और टोटल से बिक्री करूची HF देटा को गुणन कर देले ए एरियाटा हे गला दिस इज द प्रॉफिट तो ये केस रे कौन है आमर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज द अबव एवरेज कॉस्ट कर्व तो नेक्स्ट सेकंड केस जदि देखिबा जदि तले जदि हेले कौन हम जदि एवरेज कॉस्ट ऊपरे जदि हला मार्जिनल रेवेन्यू जदि तले जदि रहला एवरेज रेवेन्यू तले जदि रहला सही केस रे कौन हम एठी इंटरसेक्ट कला मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू सहित तो ऊपर को बढ़े देले OH डैश हो एवरेज कॉस्ट OH dash और F dash M dash is the average cost OM सहित को जदि गुणन कर देबा OM dash सहित OH dash F dash M dash this is total cost total revenue कौन हवा जो एठी टच करछे P को OP और OM को जदि गुणन कर देबा OP dash और OM dash को जदि गुणन करबा ए एरियाटा हला माने OP dash E dash M dash is total cost total revenue so here total cost is more than total revenue so there is loss कारण खर्च अधिक होची जेते टंका से उत्पादक पाउची तार तो अधिक से खर्च कर दोची here total cost is more than total revenue and the average cost is also more than average revenue okay so these are the reason of loss कहीं के होची तो गोटे थेरे प्रॉफिट देखिले आ गोटे थेरे लॉस देखिले एमती भी किछि हे पारे कि टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दुटा समान हे जाय पारे तो हे थर्ड केस रे कोन हे छी जोठी ई अछि जोठी एवरेज कॉस्ट अछि से जगह रे इंटरसेक्ट करी छी सब सेठी इक्वल हे छी एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट so here the total revenue is equal to total cost so average revenue is equal to average cost जिते खर्च होची सेते टंका ही से पाउची ओके so here there is no profit no loss or this is known as normal profit okay आ या को ब्रेक इवन पॉइंट मध्य कोआ होए this is also known as break even point where total revenue is equal to total cost and average revenue is equal to average cost that point is called break even point माने जेते खर्च होची पूरा सही पॉइंट रही से अछि so here total revenue is OPEN and total cost is also OPEN so there is no profit or no loss situations this is also known as normal profit or zero profit okay and also this point is known as break even point अच्छा तो एठी तो मिनिमम से पाइला प्रोडक्शन कला एठी तो प्रॉफिट हला से प्रोडक्शन कला किंतु मझिरे जो देखु छथि हम लॉस होची तथापि से प्रोडक्शन करूची काहे की लॉस हेले काहे की से प्रोडक्शन करूची लॉस तार अर्थ होची एठी टोटल कॉस्ट तार रहिची टोटल कॉस्ट माने हला मशीन रो खर्च जो वेरिएबल माने फिक्स्ड कॉस्ट तार सेटा वेरिएबल कॉस्ट मिसुची
किंतु जिते बेले तार लॉस होची किंतु ये जगह कौन हो तार वेरिएबल कॉस्ट से कवर करुची मेसीन रो से खर्च पाई पारुनी मेसीन जोटा आगु से खर्च करथिला मेसीन रो खर्च किंतु रॉ मटेरियल्स लेबर जो खर्च होची सेटा को से कवर करि पारुची सेते पई से प्रोडक्शन करुची जदि से जिनस भी जदि कवर हबनी सेते बेले से प्रोडक्शन करिवो नाही कारण एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एई जगह रे थाए तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सहित जदि नबा खाली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जदि नेले कौन हम प्रॉफिट हम तार किंतु जिते बेले आम फिक्स्ड कॉस्ट को जदि इंक्लूड कर देबा सेते बेले तार लॉस होची ओके तो वेरिएबल कॉस्ट कवर होची बोली से प्रोडक्शन करुची माने गोटे जिनस तैयारी करबा पई रॉ मटेरियल्स और लेबर जो खर्च हुए सेटा से उत्पादन रो बाहरुची खाली मेसीन खर्च और जो बिल्डिंग जो आगु खर्च करा हेतिला सही जिनस से पाई पारु नहीं ओके किंतु से वेरिएबल कॉस्ट से पाउची सेति पई ही से प्रोडक्शन करुची दो हेयर इन ही इज इनकरिंग लॉस ओके सो दिस इज द रीजन बिहाइंड लॉस ओके सो इन द शॉर्ट रन ए फार्म मे हैव सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉस एंड नॉर्मल प्रॉफिट तीनोटी जिनस हो पारिबो शॉर्ट रन रे ओके प्रॉफिट भी हो पारिबो लॉस भी हो पारिबो ता सहित नॉर्मल प्रॉफिट भी हो पारिबो शॉर्ट रन रे तो नेक्स्ट हमें देखिबा शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ ए फार्म तो गोटे फार्म हमें जस्ट आगु देखिले एबे जस्ट कि लॉस हेले भी से प्रोडक्शन करूची कारण तार वेरिएबल कॉस्ट कवर होची जदि से वेरिएबल कॉस्ट भी जदि कवर करि पारिबो नाही से प्रोडक्शन करिवो कि केबे भी करिवो नहीं जदि लेबर और रॉ मटेरियल्स रो खर्च भी जदि आसिला नाही एमती गोटे दर रे बिक्री कला और लेबर रो खर्च भी जदि आसिला नहीं लेबर रॉ मटेरियल्स रो ताहले से प्रोडक्शन करिवो कि यू विल नॉट प्रोड्यूस ओके सो इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट द सप्लाई कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सब बेले एटलिस्ट से चेष्टा करिवो प्राइसटा कौन होतबो अधिक रहुवा कथा वेरिएबल कॉस्ट रो माने रॉ मटेरियल्स लेबर रे गोटे जिनस प्रोडक्शन करबा पई जेते खर्च हेउची ताठू प्राइस अधिक हेबा आवश्यक ताहले जाय से प्रोडक्शन करिवो ओके एटलिस्ट प्राइस सहित समान होतबो किंबा प्राइसटा अधिक होतबो सेते बेले ही से प्रोडक्शन करिवो जदि ताठू जदि कम हेले से प्रोडक्शन करिवो ही नाही तो सेति पई कौन हुए द मार्जिनल कॉस्ट कर्व एबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ए डी पॉइंट रू मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो ऊपर जोटा अच्छी दैट इज द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ ए फार्म ओके दैट इज शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ ए फार्म सप्लाई कर्व माने कौन थाए एपटे सप्लाई थाए एपटे प्राइस थाए ओके इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू आम आगु देखिले प्राइस सहित तो सब सामान हुए मार्जिनल कॉस्ट सामान हम मार्जिनल रेवेन्यू भी सामान हम ओके तो से जगह प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट नहीं कि आम सप्लाई कर्व डिराइव करि थाउ तो सप्लाईटा जो स्टार्ट हुए माने डी पॉइंट को शटडाउन पॉइंट कहा हुए ओके दैट इज P is equal to average variable cost. This is known as shutdown point. Shutdown माने कौन आम जो कोरोना आसला से देखी शटडाउन लॉकडाउन ये सब तो शटडाउन माने होची शटर डाउन माने गोटे दुकान बंद करने को शटडाउन कहा हुए तो जदि प्राइस जदि ताठू जदि कम हो गला है गोटे सपोज बिस्कुट पैकेट बनवाई ता खर्च हो 20 टंका किंतु से बिस्कुट जदि 10 टंकार जदि बिक्री होची से उत्पादन करिवो कि केते बेले भी करिवोनी 20 टंका गोटे पैकेट रे खर्च होची जस्ट लेबर और रॉ मटेरियल्स नहीं कि तो से उत्पादन करिवो कि जदि ताठू कम जदि बिक्री हला केबे भी करिवोनी एटलिस्ट 20 टंका होतबो किंबा ताठू अधिक बिक्री हेले से प्रोडक्शन करिवो सो प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट If price is less than average variable cost, then the farm will not produced. So this is called shutdown point. सेतिपई ही shutdown point कहा हुए कहीं shutdown कहा होची जदि ताथु जदि कम हैला से तार दुकान बंद करिवो आ कोन
बंद करिकी अलग किसी कर से प्रोडक्शन बंद करदेव ओके सो दिस प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज दिस शटडाउन पॉइंट ऑफ द फार्म if price is less than this average variable cost the farm stops productions सेते ही उत्पादन करिवो से आउ करिवनी बंद कर देबो जदि ताठु जदि प्राइस कम हैला ताठु जदि अधिक हैला सेते बेले ही सप्लाई करिवो ओके जोटी प्राइस अधिक जदि हैला ओके दिस इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ताठु जदि अधिक हैला ठीक अछि 20 टंका तार प्रोडक्शन होची 30 टंका जदि बिक्री हैला 50 टंका जदि बिक्री हैला ताहले से कौन करिवो प्रोडक्शन करिवो से ओके सेति पई सप्लाई कपटा कोठु स्टार्ट हुए मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये जगह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी मिनिमम होची एवं मार्जिनल कॉस्ट कर्व above average variable cost curve is known as the supply curve of a farm in the short run okay तो किछटा क्वेश्चन हमें देखिबा in a city there is a large number of farm selling a product and no single farm has any control over the price of the product so it is total revenue function देछि that is 10q and total cost देछि determine how many units of product of a farm will produce per annum if it aims at profit maximization प्रॉफिट जिते बेले मैक्सिमाइज होची सेते बेले से केते यूनिट से प्रोडक्शन कले प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो ओके टोटल रेवेन्यू देछि टोटल कॉस्ट देछि तो हमर सही कंडीशन होची एमआर इज इक्वल टू एमसी ओके फास्ट हमें कोन करबा टोटल रेवेन्यू रो डेरिवेटिव नै जिबा 10q रो डेरिवेटिव हे गला 10 सेम द टोटल कॉस्ट रो डेरिवेटिव नबा विथ रिस्पेक्ट टू q सो 1000 प्लस 2q प्लस 0.01 q स्क्वायर अछि यार डेरिवेटिव हे गला 2 प्लस 0.02 q हे गला नाउ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करबा पे हमर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कोन रहै छी mr इज इक्वल टू mc ओके और mc इज इक्वल टू mr तो mc इज इक्वल टू mr कला परे हमें q पाई गले q रो वैल्यू पाई गले ओके the q रो वैल्यू दिस इज 400 is the profit maximizing level of output तो एटा पाई गले 400 जदि एटी पुनी नेक्स्ट क्वेश्चन जेछि also find out the total profit made by it in the equilibrium situations तो एठी हमर तार प्रॉफिट केते बाहर करया पई कहि छी तो सेही प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट तो टोटल रेवेन्यू होची हमर 10q तो 10 इंटू 400 हे गला 4000 सेम दी टोटल कॉस्ट फंक्शन रे जदी q रो वैल्यू पुट कर देबा 3400 हे गला हमर टोटल कॉस्ट तो 4000 माइनस 3400 कर देले 600 हे गला प्रॉफिट ओके सो दिस इज वेरी सिंपल जस्ट हमें कौन करवा डेरिवेटिव नहीं कि मार्जिनल रेवेन्यू बाहर कर देबा मार्जिनल कॉस्ट बाहर करके दुईटा को इक्वल कर देबा इक्वल कर देले सेठी q रो वैल्यू मिली जिवो q रो वैल्यू मिलला परे हमें प्रॉफिट फंक्शन रे पुट कर देले ओके टोटल रेवेन्यू रे और टोटल कॉस्ट रे पुट कर देले बाहर जिवो प्रॉफिट ओके सो दिस इज वेरी सिंपल नेक्स्ट आ गोटे क्वेश्चन देखिबा कि गोटे टोटल वेरिएबल कॉस्ट गोटे देछि ओके टोटल वेरिएबल कॉस्ट देछि जो एबे जस्ट हम पढले जो सप्लाई कर्व रो तो कहू जे कोन जदि 40 टंका जदि प्राइस रहिबो से फार्म टा प्रोडक्शन करिवो कि करिवो नाही ओके से शटडाउन पॉइंट जो कहितली शटडाउन पॉइंट हमर कोन थिला प्राइस मस्ट बी इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सहित प्राइस समान हेउथबो किंबा ताठो अधिक होतो सेते बेले ही से प्रोडक्शन करिवो तो एठी टोटल वेरिएबल कॉस्ट देछि तो हम कोन करबा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बाहर करबा केमति बाहर करबा q को डिवाइड करिके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट is divided by q so 75q minus 10q square plus q cube by q डकला परे this is average variable cost तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो जगह रे मिनिमम हुए सही जगह रे ही हमर शटडाउन पॉइंट थाए हम देखिचे जोटी मिनिमम होची तो मिनिमम पाई कंडीशन कोन
फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो होतबो एवं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होतबो दैट इज द कंडीशन फॉर मिनिमम मिनिमा पाई जोटा मैथमेटिकल मेथड रे हम पढ़ीचे मिनिमा पाई कंडीशन होची फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिवटा जीरो होतबो और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिवटा पॉजिटिव होतबो सो आम कौन कले फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिवटा जीरो नहीं गले तो एबीसी रो फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा -10 + 2q इज इक्वल टू 0 नहीं पुट कला परे q रो वैल्यू आम पाइले 5 ओके सही पॉइंट रे जोठी मिनिमम होची एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सही जगह रे q रो वैल्यू क्वांटिटी ऑफ आउटपुट रो वैल्यू हैला 5 तो एबे वेरिएबल कॉस्ट जगह रे पुट कर दबा हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जगह रे तो पुट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमें कोटा पाइथिले 75 - 10q + q² पुट कला परे बाहरी गला हमर 50 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बाहरला केते 50 और प्राइस केते दैछे 40 तो बड़ कोटा हैला एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बेसी हे गला प्राइस अधिका हेबा कथा सो द फार्म विल शट डाउन फार्म कौन करिवो बंद कर दो जदि 40 टंका जदि प्राइस रहिला जदि 60 टंका हेतांदा देन फार्म प्रोडक्शन करी थांदा कारण 60 टंका जदि प्राइस हेले तार एवरेज वेरिएबल कॉस्टा कवर हबो ओके सो दिस इज द शट डाउन पॉइंट दैट इज प्राइस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नेक्स्ट इज इंडस्ट्री सप्लाई कर्व तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे गोटे जिनस अच्छी इंडस्ट्री इंडस्ट्री कौन इंडस्ट्री इज कंसिस्ट ऑफ फार्म्स जिते भी सब फार्म्स माने जिते भी सब प्रतिष्ठान उत्पादन करुछंती से समस्तंकर उत्पादन नहीं कि गोटे इंडस्ट्री हुए जेमती हमरो मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई जेमती अच्छी सेमती इंडस्ट्री डिमांड अच्छी कारण एठी सब गुड्स रो क्वालिटी समान अच्छी ओके तो सेटा हो जे गोटे इंडस्ट्री सो इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ फार्म्स जिते भी सब फार्म्स को लेकिन गोटे इंडस्ट्री होता है सो इंडस्ट्री सप्लाई कर्व इट विल बी ऑल्सो अपवर्ड स्लोपिंग कारण सब फार्म मान को लेकिन ही इंडस्ट्री है तो फार्म माने जदि प्राइस बढ़ले जदि अधिक सप्लाई करूछंती ताहले इंडस्ट्री रे भी सप्लाई अधिक हो कारण समस्त सप्लाई को लेकिन इंडस्ट्री है so the sudden supply curve of industry is obtained by lateral summation or horizontal addition of sudden supply curve of all individual firms in the industry सब individual firms मानकर सप्लाई को यदि मिसई देले हमें पाइबा इंडस्ट्री सप्लाई कर्व the sudden supply curve of industry is always slope upward this is because the sudden marginal cost curve of the firms always slope upward above the minimum point of average variable cost तो इंडस्ट्री सप्लाई कर्व सडन रे अपवर्ड स्लोपिंग कहीं होता है कारण सब फार्म गुड़ाकर कर्वटा अपवर्ड स्लोपिंग होता है above the average variable cost so that is the reason behind अपवर्ड स्लोपिंग इंडस्ट्री सप्लाई कर्व सब फार्म मानकर सप्लाई को लेकिन इंडस्ट्री सप्लाई कर्व होती से कौन हुए एटा भी अपवर्ड स्लोपिंग होता है इंडस्ट्री सप्लाई कर्व नेक्स्ट विल सी द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम तो आम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम देखिले फार्म रो कि शॉर्ट रन रे कौन हुए गोटे फार्म तार प्रॉफिट हुए लॉस हुए ता सहित नॉर्मल प्रॉफिट हुए ओके बट इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ए फार्म विल हैव ओनली नॉर्मल प्रॉफिट केवल कौन हम फार्म रो नॉर्मल प्रॉफिट हम तार अर्थ लॉन्ग रन रे द टोटल रेवेन्यू विल बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट जदि टाइम पीरियड जदि बहुत अधिक दिहा गोटे लंबा टाइम पीरियड जदि नहीं जावा तो सेठी कौन हम जदि फार्म मानकर जदि प्रॉफिट होची जदि फार्म मैंने सब प्रॉफिट कर बहुत सारा प्रॉफिट होची ताहले कौन हम नुआ फार्म मैंने एंट्री करेंगे से भी प्रोडक्शन करने इच्छा करेंगे तो प्रोडक्शन जदि कले कौन हम सप्लाई बढ़ीज सप्लाई बढ़ले प्राइस कमिज प्राइस कमिले कौन हम प्रॉफिट जो थिला से प्रॉफिट कमिज आ सेटा नॉर्मल प्रॉफिट हो ओके जदि प्रॉफिट जदि अच्छी इफ द फार्म्स अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट the new farms will be attracted to produce so the supply of good will increase or price will decline and profit will decrease
बुझेगा। तो कौन हम जिते बेले अधिक जिते बेले प्राइस जदि अच्छी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जदि हो तो नुआ फार्म मैंने अट्रैक्ट हे प्रोडक्शन करने। तो जदि प्रोडक्शन कले कौन हम सप्लाई बढ़ो, सप्लाई बढ़ले प्राइस कमी जीवो, प्राइस कमिले प्रॉफिट भी कमी जीवो। ओके सेमती जदि लॉस जदि हो फार्म मानकर सब लॉस हो तो सब फार्म तो रही किसी छाड़ी पलैबे। तो जो छाड़ी पलैला पड़े कौन हम सप्लाई कमी जीवो, सप्लाई जदि कमिले कौन हम प्राइस बढ़ी जीवो। तो जो लॉसटा जोटा थिला लॉस विल बी एलिमिनेटेड। So in the long run all the farms in perfect competition market will have only normal profit। और normal profit long run equilibrium रा तारा condition है पारिबो the long run marginal cost will be equal to long run average cost is equal to average revenue is equal to marginal revenue। तो ये सब long run रे equal है जो marginal cost will be equal to average cost is equal to average revenue। Okay, so there will be no loss or no profit, there will be only normal profit। The total revenue will be equal to total cost in the long run equilibrium। Then we'll see long run industry supply curve। So in the long run when demand increases, demand जिते बेले increase हम तो कौन हम प्रॉफिट बढ़ो। तो प्रॉफिट बढ़ले कौन हम नुआ फार्म गुड़ा अट्रैक्ट हे। तो गुड्स सप्लाई आइदर अधिक बढ़ी पारे कि कम बढ़ी पारे कि जी डिमांड बढ़ी से बढ़ी पारे। ओके तो ये तीनोटी कंडीशन लॉन्ग रन रे देखा मिल तीनोटी कॉस्ट कंडीशन को लेकिन आम माने सप्लाईटा इंडस्ट्री सप्लाईटा लॉन्ग रन रे डिफरेंट हम। सो व्हेन डिमांड इंक्रीज इन द लॉन्ग रन प्राइस गोज ऑफ, प्रॉफिट इंक्रीजेस। Whether price will increase, decrease or remain fixed depends on the cost condition in the industries। तो इंडस्ट्री सप्लाई कर्वटा अपवर्ड स्लोपिंग हम, डाउनवर्ड स्लोपिंग हम किंबा एक्स सहित इक्वाल हम और कांस्टेंट रहिबो, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट कंडीशन ऑफ द इंडस्ट्री। तो लॉन्ग रन रे सप्लाई कर्व तीन प्रकार रही पारिबो। जिते बेले डिमांड बढ़े, सप्लाई जदि अधिक बढ़िला ताहले कौन हम प्राइस कमी जीवो, दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग हम से सप्लाई कर्व। और जदि सप्लाई जदि डिमांड सहित सामान हो पारा नहीं कम जदि बढ़ुची से कौन हम प्राइस बढ़ी बढ़ी चलो अपवर्ड स्लोपिंग हम। तो कौन कौन हम गोटे गोटे कर आम देखा। तो फर्स्ट इज डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। ओके तो डिक्रीजिंग कॉस्ट जदि अच्छी माने कौन हो डिमांड जिते बढ़ुची कौन हो सप्लाई अधिक बढ़ुची कारण खर्च कमी कमी चली। डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री यू कैन से अधिक प्रोडक्शन गले से कॉस्टा कौन हो इनपुटर कॉस्ट धीरे धीरे कमी कमी चली। अधिक जदि प्रोडक्शन कले आ खर्च आउ कम रहिबो। तो ये केस रे कौन हो लॉन्ग रन रे जदि डिमांड बढ़े सप्लाई भी बढ़िबो गुड्स रो। तो सप्लाई बढ़ले कौन हम प्राइसटा कमी जीव, सप्लाई अधिक हो डिमांड जिते बढ़ुची सप्लाई ये कौन हो अधिक बढ़ुची। डिमांडटा डी रु D1 को आसला, सप्लाईटा S रु S1 को आसला। तो द चेंज इन द डिफरेंस बिटवीन द सप्लाई कर्व आर मोर देन द डिफरेंस बिटवीन द डिमांड कर्व। सो देयर विल बी मोर सप्लाई, सप्लाई जदि अधिक है ताहले कौन हम प्राइसटा धीरे धीरे कमी कमी जीव। सो इन द लॉन्ग रन द सप्लाई कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग, प्राइस कौन हम डिक्लाइन करिवो जिते बेले सप्लाई बढ़ी बढ़ी चलिबो। जदि डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री अच्छी इनपुट रो कॉस्ट जदि धीरे कमी कमी चली इन दैट केस वी कैन सी द इंडस्ट्री सप्लाई कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग इंडस्ट्री सप्लाई कर्व। तो जदि डिमांड बढ़िला सप्लाई जदि ताठू कम बढ़ुची ताहले कौन हम प्राइस बढ़िबो। ओके तो इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री केस रे एटा देखा मिलिबो। इंक्रीजिंग कॉस्ट माने कौन जिते बेले अधिक द्रव्य जो प्रोडक्शन हुए इनपुट रो डिमांड बढ़े। ओके तो इनपुट रो डिमांड जदि बढ़िला इनपुट रो खर्च भी बढ़िबो। तो जदि अधिक आम सप्लाई करने चाहूचे
ताहले तार प्राइस भी अधिक हम खर्च अधिक जेहेतु हो तो सप्लाईटा कौन जिते बढ़िया कथा सेते बढ़िबो नाही कारण खर्च अधिक होची सो हियर आर द डिफरेंस बिटवीन द चेंज इन डिमांड इज मोर देन द चेंज इन सप्लाई डिमांड जिते चेंज होची डिमांड जिते बढ़ुची सप्लाई सेते बढ़ू नाही तो कौन हम प्राइसटा बढ़िबो तो ये जो टेंजेंसी जो इंटरसेक्ट पॉइंट गुड़ा को जदि आम जोड़ी दबा दिस इज द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व सो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इन इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री इज अपवर्ड स्लोपिंग ए केस रे कौन होची खर्चटा बढ़ी जाउची ओके इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री सो इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री रे इंडस्ट्री सप्लाई कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग नेक्स्ट इज कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री कौन हम इनपुट रो कॉस्ट सेया रहिबो जेते उत्पादन बढ़िले भी एटी खर्च जेमती अछि सेमती ही रहउची माने डिमांड जेते बढ़ुची सप्लाई भी पूरा समान बढ़िबो एठी डी रु जो D1 हैला सप्लाई भी S रु S1 हैला तो कौन हैला जेतकी डिमांड बढ़ुची सेते भी सप्लाई बढ़ुची ओके तो गुड्स सप्लाई बढ़ुची किंतु प्राइसटा जेते थिला सेते रहउची because here the industry is that constant cost industry so the cost is not changing when we are increasing output तो ये सप्लाई कर्वटा x सहित पैरेलल हम सप्लाई जिते बढ़िले भी the price will remain fixed okay so in constant cost industry the supply curve industry supply curve will be parallel to x axis तो आम तीनोटी केस देखिले इंडस्ट्री सप्लाई कर्व लॉन्ग रन रे दिस इज इन लॉन्ग रन डाउनवर्ड स्लोपिंग होची अपवर्ड स्लोपिंग होची और गोटे एक्स एक्सिस सहित पैरेलल होची इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज इन केस ऑफ इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन वी कैन सी 3 टाइप्स ऑफ लॉन्ग रन सप्लाई कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग अपवर्ड स्लोपिंग एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस so that's all for this class so these are the some question which you can practice okay and there is some mathematical question also next page ए टाइप रो क्वेश्चन आम कले एबे तो एटा को प्रैक्टिस करबा ए क्वेश्चन गुडा को लिखिबा ओके सो बिकॉज these are the most important questions okay so that's all for this class if the class is interesting for you then please like share and subscribe and send to your friends okay so that's all for today take care study well and good luck thank you